الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت سے درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا راحت العاشقین۔ گرامی قدر معزز سامعین و حاضرین حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 تک درس و بیان کیا تھا، جس میں آپ نے گائے کا واقعہ سنا کہ وہ گائے کا میں نے واقعہ آپ کو تفصیل کے ساتھ جو قرآن پاک میں ہے وہ سنا دیا تھا، جس وجہ سے اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ تو اب اس سے اگلی بات جو اللہ نے فرمائی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ واقعہ ہونے کے بعد جب ہم نے تمہیں مردہ زندہ کر کے دکھا دیا، اس نے کہہ دیا کہ میرے قاتل فلاں ہیں، ثم قست قلوبکم، چاہیے تو یہ تھا کہ اتنا بڑا واقعہ دیکھنے کے بعد تم نرم ہو جاتے، تمہاری طبیعتوں میں نرمی آ جاتی، اللہ کی طرف مائل ہو جاتے، رسول کی طرف مائل ہو جاتے۔ ثم قست قلوبکم، اللہ فرماتا ہے پھر تم اور زیادہ سخت ہو گئے، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ قلوبکم، یہ قلوب قلب کی جمع ہے جس کا معنی ہے دل، قست سخت ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے دل اس کے بعد اور زیادہ سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس واقعہ کے بعد، فہی کالحجارہ، اس طرح سخت ہو گئے جس طرح پتھر ہے، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے پتھروں کا حال تو یہ ہے، تمہارے دل تو اتنے سخت ہو گئے، یعنی تمہارے دل میں نرمی نہیں آئی جس سے تھوڑی بہتی کوئی ایسی روشنی نکلتی جو ہدایت قبول کرنے والی ہوتی۔ فرمایا تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے اس واقعہ کے بعد، گائے والا واقعہ دیکھنے کے بعد آنکھوں سے تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ جس طرح پتھر ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ فرمایا حالانکہ پتھر جتنا مرضی سخت ہو لیکن ان میں بھی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں ایسے موجود ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ایسے پتھر بھی ہیں وہ پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔ اس کی تفصیل آپ پیچھے سن چکے ہیں، اور فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا
लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और ऐसे भी पत्थर हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर जाते हैं। फरमाया ओए बनी इसराइल वालों, तुम तो उन पत्थरों से भी सख्त निकले। ये तज़किरा कर रहा है बनी इसराइल वालों का। फरमाया तुम तो उन पत्थरों से भी सख्त निकले। फरमाया वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तुम जो कुछ भी करते हो ना, अल्लाह इससे गाफिल नहीं है, अल्लाह जानता है सब कुछ। इतनी बात करने के बाद अब अल्लाह मोमिनों से मुखातिब है। फरमाता है अफततमऊना अन युमिनू लकुम, क्या तुम उम्मीद रखते हो इन लोगों से, यहूदी मुनाफिकों से, कि ये ईमान ले आएंगे? इन पर उम्मीद ना रखो ऐ मोमिनो, मुसलमानों, तुम इस उम्मीद पर इनके साथ तल्लक जोड़ते हो, इनको अपने करीब करने की कोशिश कर, तो ये ईमान ले आएंगे? अल्लाह फरमाता है वक़द काना फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलाम अल्लाह सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बाद मा अकलूहु व हुम यालमून। अल्लाह फरमाता है इनसे तवक्को रखते हो कि ये ईमान लाएंगे, हालांकि इनका एक ग्रोह वो भी है, इनके अंदर दो ग्रोह है, एक पढ़े लिखों का, एक अनपढ़ों का। इनमें एक ग्रोह वो भी है यस्मऊना कलाम अल्लाह, समया यस्मऊ का माना क्या है? सुनता है अल्लाह के कलाम को। सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बाद मा अकलूहु, उसको अच्छी तरह समझने के बाद फिर बदल देता है। यानी ये नहीं कि उनको समझ नहीं आती, समझ आती है, वो पढ़े लिखे हैं, अल्लाह का कलाम सुनते हैं, फिर उसको समझते हैं, सुनने के बाद, समझने के बाद उसको बदल देते हैं। बदलने का क्या मतलब? जैसा कि यहूदियों की आदत थी कि कुरान के उनकी किताब तौरात में जो कुछ लिखा होता था, जब उनको सुनाया जाता कि तुम्हारी किताब में ये लिखा है, मेरे नबी की ये शान लिखी है, ये शान लिखी है, वो सुनते, सुनने के बाद आगे जब बयान करते तो उसको बदल देते, कहते नहीं इसका मतलब ये है, यूं लिखा है, यूं नहीं लिखा। मेरे नबी की शान यहां भी उनको मिलती है, उसको या तो बदल देते या छुपा लेते, ये उनका तरीका था। तो पता चला हक बात को छुपाना या हक बात को समझकर उसको बदलकर लोगों को बयान करना, ये यहूदियों का तरीका है। हक बात को हक बयान करो, सच बात को सच बयान करो, खा वो तुम्हारे अपने खिलाफ क्यों ना हो। शरीयत कहती है जो बात हक है, सच है, उसको उसी तरह बयान करो, उसमें अपने जाती मफाद के लिए तब्दीली ना करो, जैसे ये यहूदी करते थे। और आगे अगली आयत इब्तिदाई आयतों से मिलती जुलती है, इसका तर्जमा भी आपको याद होगा, आपको इसकी तफसीर भी याद होगी। अल्लाह फरमाता है व इज़ा लकुल लज़ीना आमनू कालू आमन्ना, ये यहूदियों के अंदर जो मुनाफिक है ना, वो जब मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, हम ईमान लाए। और तौरात के अंदर फलां फलां जगह पर नबी पाक की तारीफ मौजूद है। और जब वो अपनों से जाके मिलते, वो कहते हो तुम उनके पास क्या लेने गए थे, तुम खुद ही उनको बता देते हो कि तौरात के अंदर फलां फलां जगह फलां चीज मौजूद है, वो उसी को दलील बनाकर हमारे खिलाफ पेश करते हैं, तुम क्यों जाते हो उनके पास? तो वो कहने लगे व इज़ा खला बादुहुम इला बाद, जब वो अपनों को मिलते जाकर कालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतहल्लाहु अलैकुम लियुहाजुकुम बिही इंद रब्बिकुम अफला ताकिलून, तो उनके साथी उनको कहते वो क्या वजह तुम उनके पास जाकर वो बातें करते हो जो अल्लाह ने खोल दी हैं, नबी पाक की शान वाली वो बातें जो अल्लाह ने हमारी किताब में खोल दी हैं, तो वही बातें उनके साथ जाके करते हो। ले युहाजुकुम बिही इंदा रब्बिकुम, ताकि वो रब के सामने ये दलील बना ले इन बातों को,
अफला ताकिलून, क्या तुम्हें अकल नहीं? क्यों करते हो उनके साथ ये बातें? अल्लाह फरमाता है अवला यालमूना, क्या वो इस बात को नहीं जानते? अन्नल्लाह यालमु मा युसिर्रूना व मा युलिनून, अल्लाह उसको भी जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं, उसको भी जानता है जो कुछ वो जाहिर करते हैं। अल्लाह फरमाता है वो जो दूसरे यहूदी हैं उनको कहते हैं ना कि तुम उनके पास जाकर क्यों बातें करते हो, वो वही बातें तुम्हारी सुनकर फिर आगे बयान करते हैं जो अल्लाह ने तौरात में बयान की हैं, तुम ना बयान किया करो, उनको छुपाओ। अल्लाह फरमाता है जो कुछ वो छुपाते हैं हम उसको भी जानते हैं, और जिस चीज का वो ऐलान करते हैं हम उसको भी जानते हैं। और आगे फरमाया व मिनहुम उम्मीयूना ला यालमूनल किताबा इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यजुन्नून। अल्लाह फरमाता है इनमें कुछ अनपढ़ हैं। मैंने शुरू में कहा था कि यहूदियों के दो ग्रोह थे, कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ अनपढ़ थे। जो पढ़े लिखे थे वो तो समझने के बाद बात को बदल देते, और जो अनपढ़ थे, आज भी देख लें, पढ़े लिखे आदमी को समझाना आसान है, अनपढ़ को समझाना मुश्किल है। उसकी वजह, पढ़े लिखे आदमी को आप दलील देंगे वो मान जाएगा, जो अनपढ़ है वो जहां अड़ गया वो अड़ गया, वो वहां से हिलता नहीं, उसको जैसे मर्जी समझाता। अगर वो गलत जगह पे अड़ गया तो वो गलत जगह पे अड़ गया, अब वो नहीं मानता। हमारे साथ इस तरह के कई वाकयात पेश हुए। जब मसला बयान किया जाता है, पुराने कई बुजुर्ग ऐसे हैं जब वो महफिल में बैठे हैं, जलसे में बैठे हैं, जुम्मे में बैठे हैं, तो मसला बयान कर दिया। तो जब मसला बयान किया, अब उनके लिए वो नया था, वो कहते हैं जी उम्र गुजर गई जुम्मा पढ़ते, उम्र गुजर गई, मैं तो हिंदुस्तान में भी जुम्मा पढ़ता रहा हूं, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ये तो मैंने कहां से निकाल लिया। अब भाई सारे मसले तो तुम्हें नहीं आते, ये शुक्रिया अदा नहीं करते भी अच्छा ये भी मसला है, बल्कि कहते हैं जी ये तो मसला है ही नहीं, ये तुमने मन गलत कर दिया, गलत कर दिया, ये कहां से आ गया। तो वो अड़ जाते हैं क्योंकि वो अनपढ़ होते हैं। अगर वो पढ़े लिखे हो तो मुताला कर लें, उनको पता चल जाएगा। तो इसी तरह इन यहूदियों के दो टोले थे, एक तो पढ़े लिखे थे, तो रात को पढ़ना जानते थे। हमारे मुसलमानों के अंदर हमारे कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो कुरान पाक को नहीं पढ़े, उनको ऐसी सहूलत नहीं मिल सकी कि वो कुरान पाक को पढ़ लें, उनको ऐसी सहूलत नहीं मिल सकी कि वो तर्जमा पढ़ लें। अब वो मसाइल को कैसे याद करते हैं? सुन सुनाकर। अगर बयान करने वाला मन घड़त बातें करता हुआ और गलत मसले बयान करता होगा, उन्होंने तो वही याद कर लेना है। भाई मौलवी साहब थे, मिंबर पे बैठे थे, मैंने उससे सुना है, अब वो गलत तो नहीं कहता था, बस वो याद कर लिया। तो अब वो बेचारे किधर जाएं? ये कसूर उनका नहीं है, ये कसूर मेहराब व मिंबर पे बैठने वालों का है। इनको चाहिए कि सही बात उन तक पहुंचाए ताकि वो उस पर पक्के हो जाए। अगर वो गलत पर पक्के हो गए तो कसूर फिर भी तुम्हारा है, तुमने क्यों उनको सही बात नहीं बताई। तो वो जो यहूदी थे, अल्लाह फरमाता है व मिनहुम उम्मीयूना, उनमें कुछ अनपढ़ हैं, ला यालमूनल किताबा, वो नहीं जानते, किताब का इल्म नहीं रखते कि तौरात में क्या लिखा है। इल्ला अमानिया, मगर झूठी उम्मीदों पर हैं वो। व इनहुम इल्ला यजुन्नून, और वो महज गुमान और उम्मीदों पर बैठे हुए हैं। उनको उनके उलमा ने बताया परेशान नहीं होना, हम जन्नती हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने सीधे जन्नत ही जाना है, हम बख्शे बख्शे हैं। वो इन्हीं उम्मीदों पर कायम, अभी हम यहूदी तो बख्शे हुए हैं, बस उनको दलील कोई नहीं, बस गुमान पर कायम है। आजकल हमारे अंदर भी ये सिलसिला शुरू हो गया। बद अमली का सबसे बड़ा जो तूफान बरपा हुआ, इसकी वजह पता क्या है? ये हमारी महफिलें हैं। कुछ महफिलें होती हैं इस्लाह के लिए, कुछ महफिलें होती हैं प्रोफेशनली तौर पर।
जो प्रोफेशनल महफिल होती है ना, उसमें नकीब महफिल भी प्रोफेशनल होते हैं। वो कहते हैं बस तुम सुभान अल्लाह कह दो, बस तुम सीधे जन्नत चले जाओगे, कोई नमाज की जरूरत नहीं, कोई रोजे की जरूरत, बस मैं जो कहता हूं तुम कह दो, जिसने जन्नत जाना है हाथ खड़े कर दो। अच्छा भी हाथ खड़े करके जन्नत चले जाएंगे? खड़े होके कह दो सुभान अल्लाह, जिसने जन्नत जाना है खड़े होके सुभान अल्लाह कह दो, बैठ के सुभान अल्लाह कह दो। फिर ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि लोग कहते हैं अभी अमल की तो जरूरत नहीं, हमने वैसे ही जन्नत चले जाना है। तो मेरे भाई याद रखो, किसी मुगालते में न रहना, किसी गलती में न रहना, किसी गलत फहमी में मुब्तला न हो जाना। अल्लाह की कसम है, कुरान मेरे सामने है, अमल के बगैर चारा कोई नहीं, अमाल के बगैर चारा कोई नहीं। ये झूठियां मन गढ़ंत कहानियां सुन सुनकर खुश ना होना, बल्कि अमाल तुम्हारे काम आएंगे। अगर तुम्हारे अमाल अपने नहीं है तो फिर खुश होने की जरूरत नहीं, परेशान हुआ करो। और वो जो तुम्हें कहते हैं तुम सुभान अल्लाह कह दो जन्नत चले जाओगे, उन्होंने खुद ना फजर की नमाज पढ़नी होती, ना ईशा की पढ़नी होती, ना कोई और पढ़नी होती। ऐसे बदअमाल लोग स्टेजों की जीनत बन गए। तो नहीं मेरे भाई, हमें अमल करना होगा, हमें अल्लाह को राजी रखना होगा, अल्लाह के साथ राब्ता रखना होगा। वो राब्ते का एक ही तरीका है कि 5 वक्त अल्लाह से राब्ता करो, 5 वक्त राब्ता करो अपने अल्लाह से। नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो अल्लाह से बातें करनी तो कुरान पढ़ो, गोया कि तुम अल्लाह से बातें कर रहे हो। ये है काम करने वाले, और इन कामों से हमारी महाफिल दूर चली गई। महाफिल में सिर्फ फज़ाइल सुनाए जाते हैं, ये बातें बताई नहीं जाती। तो हमारे भी जो अनपढ़ लोग हैं वो इसी बात पर पक्के हैं। उन्हें कहा यार नमाज पढ़ ले, और नहीं, राती महफिल पे गया था तो उन्होंने कहा था कि तुम मेरे साथ मिलकर पढ़ लो, बस तुम बख्शे बख्शाए। उन्होंने तो नमाज का मुझे कहा ही नहीं। तो मेरे भाई याद रखो, ये नमाज, ये क़यामत के दिन जब सवाल होंगे, पहला सवाल नमाज का है। ये महफिलों वाले नहीं बताते, ये हमें नहीं बताना है तुम्हें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन जब बंदे से सवाल अल्लाह करेगा ना, तो पहला सवाल जो है वो नमाज का है। और जहन्नमी जब जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे ना, वो दरमियान में यूं दीवार होगी शीशे की तरह, वो कहेंगे वो तुम्हें क्या हुआ, तू तो अच्छा भला था, तू तो बड़ा नेक लगता था देखने को, तू भी जन्नम चला गया, तुझे क्या हुआ? वो कहेगा लम नाकु मिनल मुसल्लीन, मैं नमाज नहीं पढ़ता था। कुरान है ये कोई किस्सा कहानी नहीं। वो कहेगा लम नाकु मिनल मुसल्लीन, मैं नमाज नहीं पढ़ता था। तो इसी तरह हमारे भी अनपढ़ लोग जो हैं वो इस तरह की खिताबतों और नकाबतों पर अपना अकीदा बनाए बैठे। नहीं, अकीदा इस पर बनाओ, अल्लाह ने जो अहकाम हमें दिए हैं उन अहकाम पे अमल करोगे तो तब अल्लाह ताला हमें बख्शेगा, जन्नत तब जाना है, वरना खुशफहमी में ना रहना। और फरमाया फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह लियश्तरू बिही समनन कलीला। अल्लाह फरमाता है फिर उन यहूदियों का तरीका ये है, एक तो है मतलब गलत बयान करते, दूसरा ये है कि उस किताब में तब्दीली करते। तब्दीली कैसे करते? अपने पास से लिख देते और कहते ये अल्लाह की तरफ से। अल्लाह फरमाता है बर्बादी है उन लोगों के लिए यक्तबूनल किताबा, जो किताब में लिखते हैं बिअयदीहिम, अपने हाथों से खुद ही लिख लेते हैं, सुम्मा यकूलूना, फिर कहते हैं हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये भी अल्लाह की तरफ से हुक्म है। और ये करते क्यों है? ले यश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि उसके बदले में थोड़े से पैसे मिल जाएं। पैसे लेने के लिए, यहूदियों को खुश करने के लिए उनकी मर्जी की कोई तहरीर बनाते हैं, कहते हैं ये भी अल्लाह की तरफ से, लिख देते हैं अपने हाथ से। और अल्लाह फरमाता है उनके लिए बर्बादी है। और दूसरा फरमाया फवैलुल लहुम, उनके लिए भी बर्बादी है, मिम्मा कतबत ऐदीहिम, उस वजह से जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून,
اور ان کے لیے بھی بربادی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے بھی، اس سے وہ جو مال کماتے ہیں۔ اب یہودی اپنے ان پڑھوں کو کیا کہتے تھے، اور ان پڑھ لوگ اس بات پر پکے ہو گئے، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا۔ یہودیوں نے ان پڑھ لوگوں کو اس پر پکا کیا تھا، ہم نے جہنم نہیں جانا صرف 40 دن، چند دن ہم نے جہنم جانا ہے، پھر ہم جنتی ہیں۔ جہنم میں کیا کرنے جانا ہے؟ وہ نہیں جو بچڑا پوجا تھا ہم نے 40 دن، موسیٰ علیہ السلام تو رات لینے گئے تھے، ہم نے بچڑے کی پوجا کی، وہ ہمارا ایک جرم ہے، صرف 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے ان سے کہو پیارے محبوب، ان سے کہو کیا تم نے کوئی اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ فرمایا کیا ہے ان کو؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو یہ جانتے ہی نہیں۔ بھی کسی کو کیا پتا کس نے جہنم میں کتنے دن رہنا ہے کہ نہیں رہنا، اور یہ کہتے ہیں ہم نے چند دن رہنا ہے، 40 دن وہ جو بچڑا پوجا تھا نا، وہ پیچھے آپ نے واقعہ سنا، بس اتنے دن رہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بلا من کسب سیئۃ احاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں؟ یاد رکھو ہمارا قانون یہ ہے، اس کو جان لو، جس نے برائی کی، جس نے جان بوجھ کے برائی کی، اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا۔ فاولئک اصحاب النار، اس جہنم میں ہوگا، وہ جہنمی ہے، فیہا خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَآمِنُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیے۔ اب پھر دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، وَآمِنُوا الصَّالِحَاتِ، ساتھ نیک اعمال کا ذکر ہر جگہ موجود ہے، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ مال نہ بھی کرو گے تمہیں بخش دیا جائے گا۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور جنت میں ہمیشہ رہے گی۔ یہ میں نے آیت نمبر 82 تک آج کا درس دیا ہے۔ میں نے کچھ باتیں شب برات کے حوالے سے کرنی تھی، تو میں نے کہا کہ درس بھی ہو جائے تو شب برات کے حوالے سے بات بھی ہو جائے۔ یہ شب برات کے حوالے سے پہلی بات جو ہے، شب برات کی فضیلت سننے سے پہلے میری 8 باتوں کی طرف توجہ کریں۔ ہم فضائل سنتے ہیں، لیکن 8 باتیں جو میں بیان کرنے لگا ہوں احادیث سے نکال کر، ان پر پوری توجہ کرنا۔ میری ایک ایک بات آپ کے لیے بڑی قیمتی ہوگی۔ اس رات میں اللہ بخشے گا، اللہ کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے، لیکن 8 آدمیوں کو نہیں بخشتا۔ کتنے آدمیوں کو؟ ان 8 کی میں آپ کو فہرست بتاتا ہوں۔ آپ نے دیکھنا ہے ان میں سے ہمارے اندر کوئی بیماری ہے تو نہیں، اگر ہے تو شب برات، شب بیداری کرنے آنے سے پہلے اس بیماری کو ختم کر کے آؤ۔ پہلی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشتا۔ جو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرے اس کو اللہ نہیں بخشتا، اس رات بھی نہیں بخشتا، شب قدر میں بھی نہیں بخشتا۔ دوسرا کینہ پرور، کسی کے ساتھ خام خواہ کینہ بغض رکھنا، کسی مسلمان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ تو رکھ سکتے ہیں نا، مسلمان کے ساتھ کینہ رکھنا، بغض رکھنا، اگر وہ اس کو نہیں ترک کرتا، ساری رات جاگتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسرا وہ انسان جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے، اس کے وارثوں سے وہ معافی مانگے، فدیہ دے، وارث معاف کر دیں، تب وہ شب برات جاگنے کے لیے آئے، فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ اور چوتھا آدمی بدکار مرد یا بدکار عورت،
अगर वो बदकारी पर बरकरार है, उसे शब बरात जागने का कोई फायदा नहीं। वो शब बरात जागने से पहले अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करे। अच्छा, कई तौबा ऐसे करते हैं भाई, चलो आज तौबा कर लेते हैं, फिर अगली बार देखा जाएगा। नहीं, ऐसे तौबा नहीं, ये तौबा ही नहीं है। तौबा ये है कि पहले अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना, फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के अर्ज करना, या अल्लाह मुझसे ये गलतियां हुई हैं, मुझे मौला माफ कर दे और मैं आइंदा ये कभी भी नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं या अल्लाह नहीं करूंगा, तब तौबा होती है। अगर तौबा ये की कि चलो अब शबरात को बख्शा लेंगे, नए आएंगे नए देखे जाएंगे, ये तौबा नहीं है। और इसके बाद 5वां नंबर, कता रहमी करने वाला, यानी रिश्ता नाता तोड़ने वाला। किसी मुसलमान से बगैर किसी शरई उज़्र के किसी मुसलमान से तल्लक तुमने तोड़ा हुआ है, शरई उज़्र कोई नहीं, उसके साथ तल्लक जोड़ के आना, उसको मिल के आना। अगर तुम्हारी गलती है तो माफी मांग के आना। अल्लाह को मनाना मुश्किल नहीं है, बंदे को मनाना मुश्किल है। और अगली बात भी कर दूं, अगर कोई आदमी तुम्हारे पास आ जाए कि मुझसे गलती हो गई थी यार, मैंने तुम पर ज्यादती की थी, उस ज्यादती को दोहराना जरूरी नहीं होता, बस यही काफी होता है। इशारतन कह दो, इजमालन कह दो कि मुझसे यार ज्यादती हुई थी, मैंने आपसे ज्यादती की थी, फला मौके पर मेरी तरफ से ज्यादती हो गई थी, तो मैं माफी चाहता हूं, आप मुझे माफ कर दें। ये नहीं कि मैसेज छोड़ दो कि भाई मैं मुझसे जिस पर ज्यादती हुई थी वो मुझे, ऐसे माफी नहीं मिलती। ये तरीका नहीं है माफी मांगने का। ये कोई तरीका है कि मैसेज छोड़ दो, फेसबुक पे छोड़ दो, इससे माफी नहीं, बकायदा उसको मिलो। अगर नहीं मिल सकते कम से कम टेलीफोन पे राब्ता करो। ये मैं उसकी बात करता हूं, वो मुसलमान है, तुम्हारा दोस्त है, या तुम्हारा दोस्त है या तुम्हारा रिश्तेदार है, और शरई उज़्र भी कोई नहीं, और तुमने तो उससे रिश्ता तोड़ा हुआ है, उससे रिश्ता जोड़ो। और 6वां नंबर, जिस आदमी की शलवार टखनों से नीचे रहती है, मर्द की। 7वां नंबर, जो अपने वालिदैन का नाफरमान है। नौजवानों तुम सुनो, तुम में से जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप को तंग करता है, माँ बाप की बात नहीं मानता, माँ बाप को परेशान करता है, माँ बाप के सामने जुबान खोलता है, उसको शब बरात जागने का कोई फायदा नहीं। कब तक? जब तक अपने माँ बाप के कदमों में जाकर माफी ना मांग ले, उनसे कहे मैंने आज रात जागनी है, मेरी रात जाया नहीं जानी चाहिए, आप माफ कर दें। और माँ बाप को आपने जितना मर्जी तंग किया हो, एक मर्तबा माफी मांगे वो मान जाते हैं, उनको मना के आओ। और 7वां शख्स वालिदैन का नाफरमान। और 8वां वो जो शराब पीता है और शराब का आदी है, वो तर्क करके आए कि आज के बाद मैंने शराब नहीं पीनी। अगर इन 8 चीजों के पर आप अमल करके फिर ये शब बरात जागेंगे तो फायदा होगा, वरना ये उसी में रहा। एक आदमी ने कहा भाई कुएं में कुत्ता गिर गया, अब क्या करें? उन्होंने कहा जी इतने डोल निकाल दो। वो डोल निकाल दिए। अब मुफ्ती साहब से फिर मसला पूछने गए, जी कुआं पाक हो गया कि नहीं? उन्होंने कुत्ता कहा है, कुत्ता तो कुएं में है। उसने कहा फिर पाक कैसे हो? पहले कुत्ता निकालो। कुत्ता निकालोगे तो मेरे भाई ये जो मैंने 8 किस्म के लोग बताए हैं, आपको इसलिए बताया है कि आपने अपनी गिरेबान में झांकना है। इनमें से कोई प्रॉब्लम हमें तो नहीं, अगर है तो उसका इलाज करके शब बरात जागने के लिए आना। और फिर जब आप इन 8 बीमारियों से बच जाएंगे, इन 8 बीमारियों का इलाज करके मस्जिद में आएंगे, तो फिर क्या होगा? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम को मैंने देखा, आका अलैहिस्सलाम मेरे कमरे में आए। इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे कमरे में आए तो जल्दी जल्दी लिबास बदला, फिर दोबारा बाहर तशरीफ ले गए। मैं कुछ देर इंतजार करती रही, फिर मैंने सोचा आज बारी तो मेरी थी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने बारियां तकसीम की हुई थी कि आज रात फलां बीवी के पास गुजारनी है, आज रात फलां के। मैंने सोचा बारी मेरी थी, नबी अलैहिस्सलाम किसी और औरत के हुजरे में तो नहीं चले गए। फरमाती है मैंने सारे हुजरे चेक किए तो किसी हुजरे में भी मेरे आका नहीं थे। फखरज
फअतलबहु फइज़ा हुवा बिलबक़ीय राफ़िउ रासहु इलस्समा। फरमाते हैं मैंने जब देखा तो मेरे आका अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है मदीने का, उसमें खड़े हुए आसमानों की तरफ चेहरा किए हुए थे। तो फरमाया ऐशा अकुंत तखाफीना अन यहीफ़ल्लाह अलैके व रसूलहु, ऐशा क्या तूने समझा अल्लाह रसूल ने तेरे साथ कोई ज्यादती कर दी? मैंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मुझे ये गुमान हुआ कि शायद आप किसी और बीवी के हुजरे में चले गए, आज बारी मेरी थी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐशा तुझे पता नहीं आज की रात कौन सी है? ये शाबान की 15वीं रात है, निसफ शाबान की रात है। इस रात में अल्लाह ताला बनी कलब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों को इस रात में बख्श देता है। और यही सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर एक मरतबा नबी अलैहि सलाम ने फरमाया प्यारी आयशा हल तदरीना, मिशकात शरीफ सफ़ा 115 है, हल तदरीना मा फी हाज़िही लैलत यानी लैलत निस्फ़ मिन शाबाना, तुम्हें पता है ये शबान की 15वीं रात में क्या होता है? कालत मा फीहा का क्या होता है? फरमाया फ़क़ाल फीहा अन युक्तबा कुल्लु मौलूदिन मिन बनी आदम फी हाज़िही सनते, हर औलाद आदम का जिस बच्चे ने इस साल पैदा होना है उसका नाम पैदाइश की लिस्ट में लिख दिया जाता है। व अन युक्तबा कुल्लु हालिकिन मिन बनी आदम फी हाज़िही सनते, और औलाद आदम में से जिसको मौत आनी है इस साल में उसका नाम इस रात को मौत वाली लिस्ट में लिख लिया जाता है। फरमाया वफीहा तुरफ़अु आमालुहुम वफीहा तुनज़लु अर्ज़ाक़ुहुम, इस रात तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और इस रात तुम्हारे रिज़्क़ उतारे जाते हैं। यानी जिनकी तंग रिज़्क़ में तंगी है, जब इस रात में कहते हैं या अल्लाह मेरे रिज़्क़ में वुसअत दे दे, तो अल्लाह उनके रिज़्क़ों को वसी करता है। तो मेरे भाई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो रात है, इस रात में अल्लाह ताला हर आदमी को बख्शता है जो भी आके अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया इस रात में अल्लाह आसमान दुनिया की तरफ मुतवज्जे होता है और इसमें हर एक को बख्श देता है स्वाए मुशरक के और कीना परवर के, उसको नहीं बख्शता। इसी तरह एक और हदीस पाक हजरत राशिद बिन साद फरमाते हैं, ये मैं हदीसें जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूं कि कई मरतबा मैं तुम्हें सुना चुका हूं, तो बस खुलासा कर रहा हूं। हजरत राशिद बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया शबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला मलकुल मौत को हर वो आदमी जिसकी रूह कब्ज करनी होती है उसकी फहरिस्त दे देता है कि ये फहरिस्त है, इस आदमी को मौत देनी है। और तरगीब व तरहीब इमाम मुंदरी की जिल्द 2 सफ़ा 152 पे हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन अहया लियाली अल खमसा वजबत लहुल जन्नतो, जो आदमी 5 चीजों को 5 रातों को जिंदा कर ले यानी 5 रातों की कदर करे, इनमें शब्दारी करे, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। आका वो कौन कौन सी? फरमाया लैलत तरवीहा लैलत अरफता व लैलत नहरे व लैलत फित्रे व लैलत निस्फ मिन शाबाना, यानी 8 ज़ुल्हज की रात, 9 ज़ुल्हज की रात, ईद उल अज़हा की रात, ईद उल फित्र की रात और शाबान की 15वीं रात। इन रातों में जो आदमी जाग ले, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वजबत लहुल जन्नतो, उस पर जन्नत वाजिब हो जाए। लेकिन वो बाकी शर्तें जो मैंने बताई उनका भी ख्याल करना, ये नहीं भी सिर्फ जागने, बाकी सारे काम वही रहे आपके। और इसी तरह मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और भी कई हदीसें इस हवाले से बयान की, लेकिन मैं एक और हदीस सुनाता हूं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि इस रात में एक ऐसी घड़ी आती है कि इन्नल्लाह यलहज़ु इलल काबते फी कुल्ले आमिन लहज़तन, कि अल्लाह ताला इस रात को अल्लाह ताला पूरे साल में एक ऐसी घड़ी आती है कि खाना काबा की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाता है। तो सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं नबी अलैहि सलाम ने, और हजरत अब्बास इब्ने अब्बास फरमाते हैं
یہ دونوں راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو رات، وہ وقت، جو گھڑی ہے نا، وہ شعبان کی 15ویں رات میں ہوتی ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ لوگوں کے دل بیٹھے بیٹھے لوگوں کے دل خانہ کعبہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے 14 رکعات نفل پڑھے، فارغ ہو کر بیٹھ گئے، 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص، 14 مرتبہ سورہ فلق، 14 مرتبہ سورہ ناس، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 1 مرتبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. یہ آیت پڑھی، جب پڑھ لی تو میں نے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عمل آپ نے کیا اس کا کیا فائدہ؟ فرمایا پیارے علی جو کوئی یہ کام کر لے گا جو عمل میں نے کیا، اس کو 20 مقبول حج کا اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملے گا. یہ کام اس رات میں کرنے والا ہے. 14 نفل پڑھنے، 14 نفل پڑھنے کے بعد یہ 14ویں سورہ اخلاص، 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص، 14 مرتبہ سورہ فلق، 14 مرتبہ سورہ ناس، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور 1 مرتبہ یہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور اسی رات میں امام واقدی فرماتے ہیں یہ جو شہداء ہیں نا، شہید زندہ ہیں نا، ان کی روحوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ آج میرے محبوب کی قبر انور کی زیارت کر دیا. شہداء کی روحیں اس رات میں میرے آقا علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کے لیے آتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مرتبہ شعبان کی 15ویں رات کو باہر تشریف لائے، آسمانوں کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا یہ جو گھڑی ہے، فرمایا اسی طرح 1 مرتبہ داؤد علیہ السلام اسی رات کو تشریف لائے تو دیکھا، فرمایا یہ جو رات ہے، یہ جو گھڑی ہے نا، یہ وہ ہے اس میں جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی. حضرت سیدنا امام حسن مولا علی کے صاحبزادے امام حسین کے بڑے بھائی، ان سے کسی نے پوچھا جی آپ کیسے گزارتے ہیں شب برات؟ تو فرماتے ہیں کہ میں ایسے گزارتا ہوں کہ میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں. پہلے حصے میں اپنے نانا جی پر دروشی پڑھتا ہوں، دوسرے حصے میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، تیسرے حصے میں میں نوافل پڑھتا ہوں، رکوع سجود کرتا ہوں. میں ساری رات ایسے گزارتا ہوں. تو میرے بھائی، ہاں ایک عمل ہے وہ حدیث میں نہیں لیکن بزرگوں نے بتایا. کچھ چیزیں ایسی ہیں بزرگوں کے، اللہ کے نیک بندوں کے تجربات میں ہوتی ہیں. وہ کیا ہے کہ اس رات میں 7 دانے چاول کے یا جو کے، ہر دانے پر 70 مرتبہ یا رزاقو یہ پڑھنا ہے. 7 دانے لے کر وہ دانے 7 بار 70 مرتبہ یا رزاقو اگر پڑھیں آپ، پھر ان دانوں کو سنبھال کر کسی پوٹلی وغیرہ بند کر کے اپنی جیب میں رکھیں یا اپنے پرس میں رکھیں تو یہ رزق کے اضافے کا سبب بنتے ہیں، اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ منگل کو شب برات ہوگی، تو پروگرام سن لیں. انشاءاللہ نماز کے بعد آپ کے پاس وقت ہوگا، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت، پہلے محفل ذکر ہوگی، محفل ذکر کے بعد آپ کے پاس وقت ہوگا، آپ یہ درود شریف پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دیگر ذکر اذکار کریں. کسی بیمار کا پتہ لینا ہے تو وہ لینے جائیں، اور کسی کے فاتحہ نہیں پڑھ سکے فاتحہ پڑھ لیں. قبرستان کا چکر لگائیں. قبرستان میں جانا سنت اس رات میں ہے، لیلۃ القدر میں نہیں، شب برات میں سنت ہے. تو قبرستان جائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ 12:30 بجے
सलातो तस्बीह की जमात खड़ी हो। कितने बजे? कितने बजे? 12:30 बजे सलातो तस्बीह की जमात खड़ी होगी और सलातो तस्बीह के बाद इंशाअल्लाह तिलावत और नात, उसके बाद बयान होगा। फिर इंशाअल्लाह सहरी का इंतजाम है ना? इंशाअल्लाह सहरी का इंतजाम है, तो फिर सहरी भी करवाई जाएगी। बयान के बाद इंशाअल्लाह सहरी भी करवाई जाएगी। ये पूरा शेड्यूल अहबाब अच्छी तरह याद रखें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।